डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good evening, all. Myself, Dr. Naishal Raval, would like to welcome you at Chaitanya Studio, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. In today's topic, we are just going to cover the various effect like price effect, income effect, and the substitute effect. In the last topic, we had covered about the indifference curve techniques, marginal rate of substitution, budget line, and the consumer equilibrium. After achieving the consumer equilibrium, I would just like to go with the how the price effect will take place and how it will result into the income effect and the substitute effect. Whenever we go to the market, तो तीन चीज़ें हम पहले देखते हैं, या तो उस प्रोडक्ट का प्राइस, या तो वो अपने बजट में आता है, बजट में नहीं आता है तो उसके बदले में अगर हम कोई दूसरी चीज़ खरीद सकते हैं, that is considered as a part of a substitute effect. Let us move with the introduction. The first point of an introduction, I would just like topics which are covered. Topics to be covered like price, income and substitute effect. सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शंस रहेगा, उसके बाद इनकम इफेक्ट एंड आईसीसी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सब्सटीट्यूट, उसके बाद प्राइस इफेक्ट, पीसीसी, ठीक है. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस थ्री इफेक्ट we are going, after completing this three effect, we will be going through the separation of price effect, the split of price effect. Price effect is equals to income effect plus substitute effect. PE is equals to IE plus SE. Okay. And how this will be result in the case of inferior goods, given goods, meaning of given goods and inferior goods will be seen in that sessions. And in fact, you have already know the which are the inferior goods and which are the given goods in the previous units. Okay. After completing the split effect of we will be covering the derivations of demand curve through प्राइस कंजप्शन कर्व्स और डिमांड कर्व कैसे बनता है. अब तक हमने सिर्फ डिमांड कर्व देखा था जो लेफ्ट टू राइट मूव होता था, ठीक है, अप डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड स्लोप. सुपीरियरिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में से कौन सा अच्छे तरीके से काम करता है. पहले भी मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स में कोई भी थियरीज होती है वो थियरीज ज़्यादातर एजम्पशंस के बेस पर है, एंड हाउ दिस एजम्पशंस वेर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द लिमिटेशंस. कुछ एजम्पशंस बहुत फिक्स्ड है, जैसे कि income remain the constant, no change in the factors of productions, no transportation cost, ठीक है. तो superiority of indifference curve approach मार्शलियन अप्रोच से कैसे ज़्यादा सही तरीके से आगे निकलता है, वो देखने के बाद we will be seeing the shortcomings या तो limitations of indifference curve approach, shortcomings of indifference curve approach कि कहाँ पर उसके lacking हो रहा है, वो उसको पॉजिटिव करने के लिए कौन सा अप्रोचेज हम देखने वाले हैं, ठीक है. सो इसी के यूनिट 2 के कंटिन्यूएशंस में वी आर मूविंग टूवर्ड्स द यूनिट 3 एंड लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. दिस वाज द इंट्रोडक्शंस एंड लेट अस स्टार्ट टू द इनकम इफेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस इनकम इफेक्ट, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आईसीसी, इनकम कंजप्शन कर्व. याद रखना इसको, इनकम कंजप्शन कर्व इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट. उसको हम आईसीसी के तौर पर जाने भी जाते हैं या उसको कहते भी हैं. नाउ इनकम इफेक्ट क्या है, ठीक है. इट इज अ लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट एट वेरियस लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम. वेरियस पॉइंट एट कंज्यूमर्स इनकम. पहले 10,000 में काम करता था, उसका इनकम बढ़ा 12,500 हो गया, उसका इनकम 3,000 और बढ़ा तो सीधा 15,000 हो गया. तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 22, 22 से 25, ऐसे करते करते उसकी इनकम बढ़ती जा रही है, ठीक है. अब उसके इनकम कंजप्शन का कौन सा बनेगा, तो एक डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है. एक्सिस रिप्रेजेंट्स में वाई, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द कमोडिटी ऑफ गुड एक्स
Say for example, one particular product. Y-axis represents the commodity Y. P1, P2, P3, P4 are your budget line. ठीक है, P1 L1, P2 L2, P3 L3, P4 L4 is considered as a budget line. Q1, Q2, Q3, Q4 is your income consumption curve. कैसे इनकम आपकी बढ़ती है. तो P1 L1 के ऊपर देखा जाए, यदि अगर उसकी इनकम 10,000 रुपीज़ है तो वो कितनी कॉमोडिटी Y की बाय करेगा, कितना कॉमोडिटी X का बाय करेगा. तो उसकी बजट लाइन बनती है P1 L1, उसका एक लिमिट. ठीक है, तो उसमें से वो X यूनिट अगर बाय करता है तो OM1 तक बाय करेगा. Y यूनिट यदि अगर बाय करता है तो वो ON1 तक बाय करेगा. अगर उसका इनकम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 10,000 से लेकर 12,500 हो गए, ठीक है, तो उसका नया बजट लाइन बनेगा P2 से L2 तक का. तो यदि अगर उसमें वो कितना बाय करेगा, X यूनिट कितनी लेगा, ON2, Y यूनिट कितना लेगा, ON1. ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज होता गया. अब उसका इनकम और इंक्रीज हुआ तो M2 को भी कवर करके M3 तक जाएगा. यहां पर भी 3 तक की यूनिट बाय करेगा. इनकम और इंक्रीज हुआ, M4 तक गया, ON4 तक जाएगा. एंड एट लास्ट द IC one of the properties कि भाई हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शंस. अब यहाँ पर हायर सेटिस्फैक्शंस कहाँ पर उसको मिलेगा, तो कि IC2 के ऊपर. क्यों, क्योंकि उसके बाद उसका कोई बजट है ही नहीं आगे जाने को, उसकी इनकम आगे बढ़ ही नहीं रही है. तो उसकी बजट लाइन कौन सी बन गई, तो कि P2 से L2 तक उसका बजट लाइन रहेगा. दिस इज व्हाट द इनकम इफेक्ट इज इफ योर इनकम इज चेंजिंग. नाउ मार्केट में जब भी तुम खरीदी करने के लिए जाते हो तो दो ऑप्शन होते हैं. या तो जो प्रोडक्ट चाहिए उसको तुम खरीदो, या तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो और उसके बदले पे तुम दूसरा खरीदने की कोशिश करते हो. नॉर्मली ये केमिस्ट के वहाँ पर होता है. जब भी अपने कोई दवाई खरीदने जाते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शंस के और उसको कहते हैं कि भाई हेडेक होता है और उसका दवाई मेरे को दे दे, तो उसने किसी कंपनी का एक आपको दवाई दिया है जो कि वो कभी गलत नहीं होती है, और उस दवाई की असर आपको बहुत अच्छे तरीके से हुई, आपको वो पसंद आई. दूसरी बार ऐसा केस बनता है, आप दूसरी बार यदि अगर आप वहाँ पर जाते हो तो उसको तुमको अभी नाम तो पता नहीं होता है उतना, या तो याद नहीं होता है उस दौरान, तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये सर दर्द कर रहा है, अपने को दवाई देना. तो वो दूसरी कंपनी की दवाई ले, नहीं नहीं ये नहीं, तूने जो लास्ट टाइम दी थी ना वो वाली दवाई देना. अब लास्ट टाइम उसने कौन सी दी थी वो उसको भी पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स वहाँ पर आते हैं. ठीक है, तुमने कौन सी खरीदी वो भी पता नहीं, क्योंकि बहुत पहले खरीदी, 6-8 महीने पहले, तो उसने कोई और दूसरा सब्सटीट्यूट ला के तुमको दे दिए. इवन फ्यूल की बात करूँ तो सब्सटीट्यूट में आपको पेट्रोल के साथ डीजल सब्सटीट्यूट्स में जा सकता है. ये नहीं तो कोई बात नहीं, मैं डीजल गाड़ी खरीद दूंगा. अब आई कैन नॉट अफोर्ड द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, कोई बात नहीं, मैं CNG खरीदता हूँ. आई कैन नॉट अफोर्ड पेट्रोल डीजल एंड CNG प्राइस, कोई बात नहीं, लेट अस वेट फॉर द अनदर ऑप्शंस, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अब उसमें तो ऐसा है नहीं कि तुम बाय तो कर सकते हो, लेकिन फ्यूल कंजप्शन जाएगा. फिलहाल के लिए तो बहुत कम चार्जेस पर अवेलेबल है वो आपके जो फ्यूल कंजप्शंस के सामने. सो सब्सटीट्यूट इफेक्ट मतलब एक नहीं, एक से बदले में तुम दूसरा बाय करते हो, जो कुछ भी मार्केट में दूसरा एक सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो. और वो बहुत सारी किताबों में आपको शायद एग्जाम्पल में टी एंड कॉफ़ी देखने को मिलेगा. चाय पीनी है, घर पे चाय पत्ती नहीं है, ख़त्म हो गए, कोई बात नहीं, मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ, राइट. सब्सटीट्यूट, एक के बदले पे दूसरा. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं और हम फेस भी करते हैं हमेशा जब भी मार्केट में जाते हैं. तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सब्सटीट्यूट इफेक्ट कैसे काम करता है. ठीक है, एक सिंपल डायग्राम, PQ इज योर बजट लाइन. ठीक है, यहाँ पर दो बजट लाइन है, एक PQ है और एक PQ1 है. ठीक है, D और N के बीच में आपको Q दिखेगा और लास्ट में आपको Q1 दिखेगा. X axis represents the price of commodity X, Y axis represents the price of commodity Y. ठीक है, अब PQ के ऊपर तुम इक्विलिब्रियम की बात करते हो, समतुला की. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ बनता है, तो कि पॉइंट R के ऊपर. नाउ व्हाट इज दिस IC? IC इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, यहां पर सिर्फ फिलहाल एक ही IC बनी है.
अब जब तुम आर के ऊपर इक्विलिब्रियम हो तो तुम एक्स की क्वांटिटी कितनी बाय करते हो, तो कि मैं ओ से बी वाली जो रेंज आती है वही बाय कर पाता हूं। वाई की क्वांटिटी तुम कितनी बाय करते हो कि भाई बी से आर जितना पोर्शन बनता है एम के नीचे बनेगा, ठीक है, उतना मैं वाई पोर्शन बाय कर सकता हूं। अब सपोज मान लो कि प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई, अब तुम्हारे पास 10,000 रुपया है, इन 10,000 वाली प्रोडक्ट में से उस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 7,500, तो तुमको जो डिफरेंस मिला वो तुम्हारा इनकम बड़ा हुआ, रियल इनकम विल इंक्रीज कहते हैं उसको, ठीक है, कुछ पैसे तुम्हारे पास बचे, या 10,000 की कीमत के 8,000 हो गए, तो 2,000 तुम्हारी रियल इनकम हो गई, ठीक है। तो ऐसे केस में नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा एट पॉइंट एच, एंड डिक्रीज इन प्राइस विल लीड्स टू बाय मोर कमोडिटी ऑफ द प्रोडक्ट एक्स। मार्केट में जाते हो कुछ खरीदी करने के लिए और पता चला इसका प्राइस कम हो गया, तो दो चीज़ें और बाय करते हैं। 2,000 में आपको 5 टी शर्ट मिलती है, नॉर्मली एक टी शर्ट की कीमत आपको मान लो 1,500 रुपये की होती है, 1,200 रुपये की होती है, ब्रांडेड क्लोथ्स की मैं बात करूँ तो। अब उसमें सेल चलता है, 2,000 की खरीदी के ऊपर 4 टी शर्ट तुमको मिलेगा, फिर वो 4 टी शर्ट तुम कोई भी खरीदो, कोई भी साइज का या किसी के लिए भी खरीदो, डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द रियल इनकम इंक्रीजेस। नॉर्मली 4 टी शर्ट तुम 1,500 की बाय करते हो तो अब बिल कितने का बनता है, और यहाँ पर तुमको 2,000 में 4 टी शर्ट मिलता है, उसका बिल कितने का बना। दिस इज पार्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस एंड योर रियल इनकम विल इंक्रीजेस। हम कभी क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं प्रोडक्ट को, भाई टी शर्ट्स नहीं लेनी है, शर्ट्स लेनी है। कोई लोग होता है कि भाई 2,000 की टी शर्ट तो देता है वो, नहीं मेरे को टी शर्ट नहीं लेनी, तो इसके बदले मेरे को शर्ट ला के दे। तो बीइंग अ कस्टमर वी यूज टू बार्गेन, वी यूज टू टॉक विद दैट शॉप ओनर, वो मान जाता है तो बात सही है, नहीं मानता है तो दो रास्ते हैं, या तो तुम टी शर्ट से तुम अपना सेटिस्फैक्शंस ले लो, या तो फिर वहाँ से निकल के दूसरी जगह पर तुम बाय कर लो। इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट परसेप्शन ऑफ पर्सन फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी, एंड इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल। जरूरी क्या है वो सबसे पहले देखने का। तो सब्सटीट्यूट गुड्स एक्स फॉर वाई, यदि अगर उसने एक्स के बदले में वाई खरीदने की कोशिश की तो उसका नया बजट लाइन क्या बनेगा, तो कि mn will be the budget line and the substitute effect will move from R to point H. This is known as substitute effect. तो यहाँ पर दो इफेक्ट फिलहाल हमने देखे, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूट इफेक्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट कब मिलता है, व्हेन योर इनकम गेट चेंज। सब्सटीट्यूट इफेक्ट कब मिलता है, कि भाई तुमने पूरा प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया, लेने गया था एक्स को, लेकर आया वाई को। वी वर प्लानिंग टू बाई 2 BHK ऑफ ₹50 लाख, लेकिन पता चला कि वहां 55 लाख में तुमको 3 BHK मिलता है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सब्सटीट्यूट, बट मैटर करता है अपनी एक बजट लाइन के ऊपर। 55 लाख का फ्लैट लेने के लिए मेरे को 3 BHK का फ्लैट मिलता है डेफिनेटली, लेकिन अगर मैं EMI पर लेता हूँ तो मेरा EMI कितना बढ़ता है, यदि वो मेरे बजट में आता है कि नहीं आता है। 50 का आ सकता है, इट डिपेंड्स। फिर EMI कितना जाता है वो रेगुलर चेंजेस जितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो सब्सटीट्यूट इफेक्ट मतलब एक नहीं लेकिन एक के बदले पे दूसरा प्रोडक्ट तुमको मार्केट से मिलता है वो, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द प्राइस इफेक्ट, इसको हम प्राइस कंजप्शन कर्व भी कहते हैं। इट शोज द सक्सेसिव ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजप्शंस ऑफ अ कंज्यूमर ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला किस में चेंज देखा था, तो कि इनकम में। फिर कितना चेंज देखा, सब्सटीट्यूट में। नाउ इफ द प्राइस चेंज, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की कीमत चेंज हो गई, इंक्रीज या डिक्रीज वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, बट द प्राइस चेंजेस, तो इसमें इक्विलिब्रियम क्या बनेगा। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द गुड्स एक्स, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द गुड वाई। डायग्राम में देखिए PL1 पॉइंट P वाई एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर L1 जाएगा। PL1, अब वो अगर बजट लाइन तुम्हारा बनता है तो इक्विलिब्रियम कहां पर बनेगा, तो कि IC1 के ऊपर। इंडिफरेंस कर्व कितनी है, तो कि 4। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ IC is studied in the last
यूनिट। तो व्हेन IC1 इज एट इक्विलिब्रियम तो वो एक्स कमोडिटी कितनी बाय करता है, तो कि OM1, ठीक है, सबसे पहला छोटा वाला OM1। वाई कमोडिटी कितनी बाय करता है, ON1 इफ द इक्विलिब्रियम इज एट IC1, ठीक है। अब मान लो प्राइस चेंज हो गई तो नया बजट लाइन बन जाएगा, PL1 से निकलकर PL2, आपके L1 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो L2 की साइड जाएंगे। वहां पर इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है, तो कि पॉइंट R, इंडिफरेंस कर्व पार्ट 2, सॉरी इंडिफरेंस कर्व 2। अब उतनी मात्रा में वो क्या बाय करेगा, एक्स कमोडिटी OM की रेंज में बाय करेगा और वाई कमोडिटी वो ON बाय करेगा। तो अब तक ये दो इक्विलिब्रियम पर हमने देखा कि भाई वो एक्स कमोडिटी कम बाय करता है, वाई कमोडिटी को ज्यादा बाय करता है, ठीक है। अब प्राइस फिर से चेंज हुआ तो उसका नया बजट लाइन बन गया PL3, PL1 नहीं, PL2 नहीं, PL3 तक जाएगा। अब उसमें इक्विलिब्रियम कौन सा बनता है, तो कि IC3, इंडिफरेंस कर्व 3, ठीक है। बाइंग OM commodity of goods X and buying ON3 commodity of goods Y। तो यहां से हम X commodity बढ़ाते जा रहे हैं, यहां से हम Y commodity को कम करते जा रहे हैं कॉम्बिनेशंस सेट करने के लिए। नाउ इफ द प्राइस चेंजेस अगेन, तो नया इक्विलिब्रियम कहां बनता है, तो कि वो IC4 के ऊपर बना एट पॉइंट T, buying OM commodity of X goods X and buying ON4 commodity of goods Y. Now see the differences of various equilibrium locus point of locus showing all the successive equilibrium of consumptions of a consumer due to change in price of the commodity. सबसे पहला कहां पर बना था, तो कि PL1 कौन सा इक्विलिब्रियम बना था, तो कि Q, पॉइंट Q पे ऊपर इक्विलिब्रियम था। फिर प्राइस चेंज हुआ तो कहां पर अपना इक्विलिब्रियम बना, तो कि पॉइंट R के ऊपर। फिर अगेन प्राइस चेंज हुआ तो कहां पर इक्विलिब्रियम बना, तो कि पॉइंट S के ऊपर। अगेन प्राइस चेंज तो इक्विलिब्रियम कहां पर बना, तो कि पॉइंट T के ऊपर। नाउ कंज्यूमर हैज टू डिसाइड कि कौन से पॉइंट पे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंजप्शंस ऑफ कंज्यूमर्स ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। अब इसमें कभी क्या होता है कि कोई एक प्रोडक्ट की प्राइस यदि अगर डिक्रीज होती है तो उसका रियल इनकम इंक्रीज होता है। प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हुआ देन द रियल इनकम इज इंक्रीजेस, राइट। इनकम इफेक्ट में क्या था, कंज्यूमर्स का इनकम इंक्रीज होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्राइस इफेक्ट। तो अब तक वी हैड कवर्ड अबाउट द इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट एंड द प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ अ सम ऑफ टोटल ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। नाउ लेट अस सी द स्प्लिट ऑफ प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। मार्केट में जब हम परचेस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दो तरह का लोग होता है। एक इनकम चेंज हुई है इसीलिए खरीदी करने के लिए जाते हैं, दूसरा जाता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसके पास इनकम भी है बट वो प्रोडक्ट नहीं है जो उसको खरीदनी होती है, तो उसके बदले पे वो क्या करे, तो कि वो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को बाय करता है, या तो एक्स खरीदेगा या तो वो वाई खरीदेगा, ठीक है। ये दो को एडिशन करते हैं तो हमारी प्राइस इफेक्ट बनती है। नाउ इफ द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेस, प्राइस कम हो गई, 96 रुपीज से पेट्रोल अगर कम 90 तक आता है तो अपना रियल इनकम इंक्रीज हुआ, ठीक है। नाउ व्हेन अ प्राइस ऑफ गुड फॉल, कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। सपोज 100 रुपए लीटर मान के चलते, अब 100 रुपए के 90 रुपए हो गए तो तुमको क्वांटिटी इंक्रीज होगी। 100 रुपए में एग्जैक्ट 1 लीटर आएगा, जब 100 रुपीज लीटर पेट्रोल था तब। अब अगर 90 रुपीज अगर होता है तो 1.1 या 1.15 liter petrol will be there. Quantity of buying units will increases. Similarly applicable in the stock market also. When the price of particular stock falls, people move towards buying that particular stock. One of the company was fall almost 60% down during the coronavirus. In fact, whole market was down. So many good blue chips were easily available near 800, 900, 1000 rupees, 500 rupees. Right, so when there is a lesser price of the stock, the people used to buy more and more of the commodity.
10,000 में 10 बाय कर या 10,000 में डबल क्वांटिटी बाय कर, डिपेंड ऑन द फ्लक्चुएशंस ऑफ द प्राइजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस इन द कंपनी, इवन फॉर द प्रोडक्ट ऑल्सो. एंड व्हेन द सब्सटीट्यूट गुड्स आर अवेलेबल एट द चीपर रेट्स, उसी के जैसी कंपनी, उसी के जैसी प्रोडक्ट, बट द डिफरेंट कंपनी, राइट, द सेम प्रोडक्ट, कंपनी कोई और. जैसे साबुन में आप देखते हो, वॉशिंग पाउडर में आप देखते हो, प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशंस आता है. एक 15 का बेचता होगा तो दूसरा शायद 20 रुपये का बेचता होगा, डिपेंड करता है वो. सिमिलरली इन दी फार्मा कंपनीज ऑल्सो, फार्मा प्रोडक्ट में भी आपको ये प्राइस वेरिएशंस देखने को मिलेगा. एक्स कंपनी की टैबलेट तुमको 30 रुपये में मिलती है, वाई कंपनी के टैबलेट सब्सटीट्यूट के तौर पर तुमको 35-40 और मे बी उससे कम प्राइस में भी मिलता है. यदि अगर कम है, और वो हमेशा सब्सटीट्यूट इफेक्ट में आता है. एंड टू नो द स्प्लिट ऑफ प्राइस इफेक्ट को अगर ब्रेक करने का आइडिया है तो वो इनका है कंपेंसेटिंग द इनकम अप्रोच, जो JR हिक्स ने दिया है. एंड दूसरा अप्रोच है अपना स्लट्सकी अप्रोच जिसको कहते हैं. तो JR हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का सहारा लेकर इनकम अप्रोच को हाईलाइट किया था टू एक्सप्लेन द स्प्लिट प्राइस इफेक्ट, which is also known as Hicksian approach. एंड दूसरी मेथड है इक्विवेलेंट वेरिएशंस ऑन मेथड और स्लट्सकी अप्रोच जिसको हम कहते हैं. सब्सटीट्यूट इफेक्ट का हम यहाँ पर बात करते हैं. सब सेपरेशन ऑफ प्राइस, कैसे उसको सेपरेट किया जाता है. यहाँ डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर है जहाँ पर नॉर्मल गुड्स अवेलेबल है और नॉर्मल गुड्स में कैसे प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूट इफेक्ट देखने को मिलता है. ठीक है. सो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा IC और बजट लाइन जहाँ पर टेंजेंट रहता है वहीं पर ही होगा. यहाँ पर बजट लाइन आपकी दो है, PQ एंड PQ1. एक्स एक्सिस पर गुड X रिप्रेजेंट करता है, Y एक्सिस पर गुड Y रिप्रेजेंट करता है. नाउ सपोज से फॉर एग्जांपल प्राइस फॉल, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इज फॉलिंग, तो बजट लाइन कहाँ पर शिफ्ट होगी, तो जो PQ है आपका बजट लाइन वो आउटवर्ड बाहर की साइड जाएगा, सीधा बनेगा PQ1 तक. ठीक है. अब वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर है, कौन से पॉइंट पे, तो कि पॉइंट T के ऊपर. CE मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, BL मतलब बजट लाइन. ठीक है. कब चेंज हुआ, जब आपकी प्राइस फॉल हुई. अब ये जो फॉल हुई वहां पर रिजल्ट क्या आता है, अपना रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर विल इंक्रीज. 10,000 से 7,000 हो गई तो 3,000 तुम्हारे रियल इनकम. इन 3,000 में तुम दूसरी प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हो या तो ये 3,000 रुपये तुम बचा के भी रख सकते हो. नाउ टू कंपेंसेट द वेरिएशंस इन इनकम इन ऑर्डर टू आइसोलेट द सब्सटीट्यूट इफेक्ट, कंज्यूमर मनी शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम ऑफ PM quantity of Y goods और O1N quantity of X goods. नया बजट लाइन तुम्हारा बन गया M2N वाला, मेकिंग अ न्यू बजट लाइन विच इज ऑलवेज अ पैरेलल टू द प्रीवियस बजट लाइन, दैट इज PQ1 तक का. लाइन MN देखो और लाइन PQ1 देखो, इट इज ए पैरेलल. ठीक है. प्राइस फॉल्स तो नया बजट लाइन बना. ठीक है. अब कंज्यूमर इनकम भी कम हो गई तो क्या करने का, राइट. इनकम हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है. 3 महीना एक 10-15 हज़ार रुपये मिले आपको, फिर चौथे महीने और ज़्यादा मिला, 5वां महीना ऐसा है कि भाई तुमको सैलरी नहीं मिली, या मान लो कि तुमने नौकरी छोड़ दी, कोई इनकम नहीं है, या तो तुमको नौकरी से निकाल दिया गया, जो कि बहुत कम मात्रा में ऐसा होता है, राइट. इन द प्रीवियस सेशंस में हमने देखा था कि भाई इनकम इफेक्ट कैसे प्ले करता है when we do not get these salaries. We believe on the past investments and the past savings के ऊपर. तो यही कंसेप्ट मार्केट में भी जाता है. पहले तुम 10,000 की खरीदी कर सकते थे, अभी तुम्हारे पास 8,000 का बजट है तो तुम 8,000 के बजट में रहोगे. पहले वाले केस में क्या हुआ था, PQ1 में क्या था, तो कि प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी वॉज फॉलिंग. वंस द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी फॉल्स, कंज्यूमर रियल इनकम इन विल इंक्रीज एंड दे टेंड टू बाय मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स. अब दूसरे वाले केस में क्या हुआ, तो कि भाई उसका मनी कम हो गई, इनकम डिक्रीज हो गई. जैसे पहले भी मैंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन सम एजम्पशंस, थियरीज डिपेंड्स ऑन द एजम्पशंस एंड दिस ऑल एजम्पशंस आर कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ योर लिमिटेशंस. ठीक है. इनकम नेवर रिमेन कांस्टेंट, वन ऑफ द एजम्पशन इज दैट. सो कंज्यूमर मनी
रिड्यूसेस, अब यदि अगर पैसे रिड्यूस होते हैं, सैलरी उसकी रिड्यूस होती है या इनकम उसकी रिड्यूस होती है, तो उसका नया बजट लाइन बनेगा, दैट इज एम एन अगर बजट लाइन बनता है तो वो कितनी प्रोडक्ट में चेंज लाएगा, तो कि पहले वो 10 मात्रा में यूज़ कर रहा था तो अभी 10 से वो सीधा हो जाएगा 6 या 7 के ऊपर। सिमिलरली ON1 तक जाएगा वो, ठीक है, Q1 से पहले थोड़ा सा कम जाइए, एंड दिस इज पैरेलल टू द PQ1 तक, एंड द न्यू टेंजेंट पॉइंट दैट इज IC1 एट पॉइंट H। when your budget line is PQ1 तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर बना, तो कि पॉइंट T के ऊपर। when your budget line is MN then your consumer equilibrium point will be at point H, that is on IC1, and the point T is on the IC2, ठीक है। अब मान लो कि वो एक्स एक्सिस पर आप देखिए OB पहले बाय कर सकता था, अब OB से वो सीधा D तक बाय करने की कोशिश कर रहा है। व्हेन R वाज योर इक्विलिब्रियम एट PQ1, सबसे पहला केस, ठीक है, तो उसका नया पॉइंट बन गया R से D तक, फिर D से E को क्रॉस करता है, एंड द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम वाज एट पॉइंट T ऑन द बजट लाइन PQ1। नाउ द न्यू equilibrium point is at point H on the IC1. So in case of normal goods, substitute effect, income effect, and how the new budget line is being compensated, this is called a separation of price effect into income and substitute effect। ये एक इक्वेशन ध्यान रखना, ठीक है। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूट इफेक्ट। इसमें क्या होता है, दो इफेक्ट होती है, एक में इनकम होती है और सेकंड में सब्सटीट्यूट होता है। गुड डिक्रीज, प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज हो तो रियल इनकम इंक्रीज होगा, प्राइस ऑफ गुड फॉल्स तो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने की कोशिश करेगा, और वो जो बाय करता है वो प्रीवियस गुड्स की कंपेयर से सस्ते दाम पर अवेलेबल होगा। एंड दिस कंसेप्ट वॉज बीइंग गिवन बाय द J.R. हिक्स, स्प्लिट प्राइस इफेक्ट, हिक्सियन अप्रोच कहते हैं। एंड उसके साथ दूसरा एक अप्रोच है, दैट इज स्लट्स्कीज अप्रोच, ठीक है। दिस वॉज द सेपरेशन ऑफ द प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्सटीट्यूट इफेक्ट। यहाँ तक अभी जाते हैं इन्फीरियर गुड्स और गिवन पैराडॉक्स में कैसे बाय करते हैं। अब तक हमने देखा था कि नॉर्मल गुड्स में कैसे रहती थी तुम्हारी प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। राइट नाउ वी विल बी सीइंग द प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स और इन केस ऑफ गिवन पैराडॉक्स, ठीक है। दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक इन द पर्टिकुलर यूनिट। नाउ टू आइसोलेट द इनकम इफेक्ट, ठीक है, तो आपका बजट लाइन कितना बना, PQ1 तक, सीधे डायग्राम डायरेक्टली। इन्फीरियर गुड्स में आपकी बजट लाइन 2 है, यहाँ पर PQ है, PQ1 है, और MN विल बी ऑल्सो द बजट लाइन। IC2 एंड IC1 हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर level of satisfactions, one of the characteristics or properties or features of indifference curve। तो बजट लाइन PQ1 पर बनती है, तो IC2 के ऊपर उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, तो कि पॉइंट T के ऊपर। नाउ मूवमेंट फ्रॉम H टू T, H लाइन कहाँ पर है, तो कि OD लेवल ऑफ X कमोडिटी, ठीक है। नाउ प्राइस ऑफ price of particular product falls, consumer will buy more commodity of X. Thus, the line will move towards horizontally from D to E. इसमें क्या था, राइट साइड मूव हो रहे थे, सीधे डायग्राम B to D and D to E। इसमें क्या है, D से E की साइड जाएगा, उल्टा आएगा O की साइड, ठीक है। अब income effect of a fall in price of X will be the positive, price of commodity falls, तो कंज्यूमर के लिए तो सही बात है, right, he or she will be able to buy more commodity because the real income increases, the less quantity of X will be demanded। This is why, because the quantity demand will move also in the same directions। प्राइस डिक्रीज हुआ कोई वांधा नहीं है, रियल इनकम इंक्रीज होगी, बट द क्वांटिटी डिमांड विल ऑल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शंस। ऑन द अदर हैंड द सब्सटीट्यूट इफेक्ट विल बी नेगेटिव। अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज नहीं हुई है तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और ओरिजिनल प्रोडक्ट भी आपको सेम दाम पर मिलेगा, एंड दिस विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ पर्टिकुलर गुड्स X।
इन्फीरियर गुड्स में ये एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता है. ठीक है, तो पहला बजट लाइन, आई एम रिपीटिंग अगेन, द फर्स्ट बजट लाइन एट PQ1, T इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब T से वो H की तरफ गया, चेंज हो गया. ठीक है, सो उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो भी मूव कर देगा, D से E तक जाएगा. राइट, so income effect of fall in price of the commodity product X will be the very much positive compared to the real income increases, and this will lead to the buying in the less quantity or demanding the less quantity of X, and the demanded move in the same quantity, demand will be moving in the same directions. And on the other hand, the negative substitute effect will also increase the quantity demand of product X. Hence, therefore here we saw the concept of price effect, split effect of price effect into income and substitute effect, how the price effect will result into the normal goods, how the price effect in the case of inferior goods, and the Giffen paradox. In the next class will be done about the Giffen paradox में कैसे Giffen goods में वो कैसे price effect result करता है. यहाँ तक अभी अपने को full stop रखते हैं यहाँ पर. ठीक है, I'm repeating again, in this unit we had covered about the price effect, we had covered the income effect, we had covered the substitute effect and the split effect of income and substitute effect with reference to the indifference curve and the budget line. In the next class we'll discuss about the case in the Giffen goods कैसा था, inferior goods के बारे में भी बात किया था. अभी नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे कि वो गिफन गुड्स में कैसे, एंड उसके बाद वी विल बी हैविंग द रिवील प्रेफरेंस थियरी, विल बी हैविंग द एक्सियोमेटिक अप्रोच, हाउ गिफन गुड्स विल बी हाउ प्राइस इफेक्ट विल बी देयर इन द गिफन पैराडॉक्स. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच.